रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने संकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज थोड़ा बढ़ाएंगे। ओम शांति। हम प्यारे शिव पिता को भोग स्वीकार कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आज आप रक्षाबंधन के निमित्त सभी उपस्थित हुए हो। इसमें गुजराती कौन है? सभी। जिसको गुजराती नहीं आता है वो हाथ ऊपर करे। गुजराती नहीं आता है वो, आपको नहीं आता है गुजराती? गुजराती में बोलो। हाँ, ओके। આજે આપણે રક્ષાબંધન નિમિત્તે બધા ઉપસ્થિત થયા છીએ અને રક્ષાબંધનનો પર્વ એટલે પવિત્ર પર્વ. ઉમંગ ઉત્સાહથી બધા આવ્યા છો. થોડી થોડી પરીક્ષા આવી વરસાદની. પ્રકૃતિએ સ્વાગત કર્યું કે પેપર લીધું? સાચું કહેજો. સ્વાગત કર્યું કે પેપર લીધું? કેટલા વ્યક્તિ એવું કહે છે કે સ્વાગત કર્યું, એ હાથ ઉપર કરે. સરસ. અને કેટલા એવું વિચારે છે કે પેપર લીધું? હા, પેપર નથી લીધું, પણ ભગવાન સુધી પહોંચવામાં આપણને ક્યાંક તકલીફ પડી, એ ભગવાનનો પ્રેમ કેટલો છે, ભગવાન સાથે આપણી પ્રીત કેટલી છે, એ બતાવે છે. સવારે સવારે એક જ સંકલ્પ હતો. બાબાને કહ્યું, બાબા બધા પહોંચવા જ જોઈએ, ભલે પ્રકૃતિનું પેપર આવે, પણ એ પેપર નથી, પણ આપણું સ્વાગત છે. કારણ કે સ્વાગત એનું જ થાય કે જે વિજયી બને, સન્માન એનું જ થાય કે જે વિજયી બને. તો આ બધાનું સ્વયં પરમાત્મા, શિવ બાબા, બ્રહ્મા બાબા, મમ્મા, આપણી દાદીઓ, અને આજ કોની પુણ્યતિથિ છે? મનમોહિની દીદીની, જે આપણા સંસ્થાના સહપ્રશાસિકા રહી ચૂક્યા છે. એટલો મહાન દિવસ છે, અને સાથે શ્રાવણ માસનો પહેલો સોમવાર. તો જો બધું કેટલું સરસ આપણી સાથે અનુકૂળ થયું. તો આવા સમયમાં આપણે બધા જ અહીંયા પહોંચી ગયા અને વિજયી બન્યા. તો બાબા સ્વયં તમને વિજયનું તિલક લગાડે છે. એવો અનુભવ કરો કે સ્વયં ભગવાન મને વિજયનું તિલક, કે હું પ્રકૃતિ જીત આત્મા છું. કેવી છું? કારણ કે અંતમાં તો પ્રકૃતિના પેપરો બહુ જ આવશે ને. કાલે અમે અમદાવાદથી આગળ ગયા હતા, ઉજળિયા દહેગામથી આગળ. ખૂબ વરસાદ એટલે જેને કહેવાય ને કે ધોધમાર વરસાદ. સવારે નીકળ્યા ત્યારથી રાત સુધી આવ્યા
ત્યાં સુધી. અને આખી રાત પણ ત્યાં બહુ જ વરસાદ હતો અને અમારા જેવી 250 બ્રહ્માકુમારી બહેનો ત્યાં પહોંચવાની હતી. પણ બધી જ પહોંચી ગઈ હતી. બધી જ પહોંચી ગઈ અને બધાનું રક્ષાબંધન થયું અને પાછા આવ્યા. તો જતી વખતે હું કહેતી હતી પ્રકૃતિને કે હે પ્રકૃતિ, જો શિવ શક્તિઓ આવી રહી છે આજ ભગવાન પાસે રક્ષાબંધન કરવા, તો પછી તું શાંત થઈ જા. શું થઈ જા? શાંત થઈ જા. અને ખરેખર જેને કહેવાય કે પ્રકૃતિ ધીરે 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 હલકી થતી 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 શાંત થઈ ગઈ. પછી રસ્તામાં આવતા અડધા રસ્તેથી પાછો વરસાદ શરૂ થયો. પણ એ પહેલાં અમારી 2 ગાડીઓ પહોંચી ગઈ હતી. ત્રીજી ગાડી પહોંચવાની થોડી બાકી હતી, જે અમારી હતી. પણ તોય અમે નિર્વિઘ્ન પહોંચ્યા. અમને ક્યાંય ટ્રાફિક નડ્યો નહીં. બધાને બહુ જ ટ્રાફિક હતો, પણ અમારી ગાડીઓ નિર્વિઘ્ન ત્યાંથી નીકળી ગઈ ને પહોંચી પણ ગઈ. તો કેટલી ખુશી થાય. તો કાલનો જે ઉમંગ, ગુસ્સાને દ્રઢતા હતી ને, એ જ દ્રઢતા તમારામાં ભરી આ બધી આત્માઓમાં, કે બાબાના ઘરે દરેક આત્મા પહોંચી રહી છે. પ્રકૃતિ, તું શાંત થઈ જા. જે લોકોનું મન થોડું ઢીલું બન્યું, કમજોર બન્યું, કેવી રીતે આવવું, અમે કહ્યું અમે ગાડી લેવા મોકલીશું, તમે રેડી રહો, હે ને. તો એમના મામા પણ ઉમંગ, ગુસ્સા આવી ગયો અને બધા જ પહોંચી ગયા. તો પોતાના માટે તાળી વગાડો. હા, કારણ કે બાબાના ભોગ લાગતા પહેલાં અંદર ઉમંગ, ગુસ્સા તો આવવો જોઈએ ને. ભલે બધાનું પિક્ચર, કોઈનું અડધું થયું મૂવી, કોઈનું અડધું, કોઈનું પોણું થયું, કોઈનું પૂરું થયું, કોઈ પૂરું થતા વખતે આવ્યા. આખું મૂવી જેણે જોયું, ભાગ્ય વિધાતા હાથ ઉપર કરે આખું. વાહ, ઘણા બધા છે, હે ને. અને જેણે નથી જોયું ને, એ જતાં જતાં જોઈ લેજો. તમને કોઈ ન મૂકવા આવે તો અહીંથી મૂકી જશું, ચિંતા ના કરશો. પણ બાબાના ઘરે આવ્યા છો તો જોવા જેવું મૂવી તો છે જ, હે ને, કે નહીં? છે જ. અને બીજું વિશેષ તમને કહેવાનું હતું કે રક્ષાબંધનમાં આપણે શું કરીએ છીએ? તિલક લગાડીએ છીએ. શેનું તિલક હોય છે? આત્મિક સ્મૃતિનું તિલક. શેનું? આત્મિક સ્મૃતિનું. પછી આપણે રક્ષાબંધન મનાવીએ છીએ, રાખડી બાંધીએ છીએ ને. બાબા ભાઈ છે આપણા, બેન પણ છે આપણી. તો ભોગ લાગે તો શું કરશો? વતનમાં ટીકો લગાવશો શિવ બાબાના. તો શિવ બાબાને તો કપાળ નથી, કેવી રીતે લગાડશો? કેવી રીતે લગાડશો? બહેનો જ ટીકો લગાડી શકે કે ભાઈઓ લગાડી શકે? લગાડી શકે ને. આપણે બધાએ બેન બની જવાનું. શું બની જવાનું? બેન. બાબા ભાઈ. કોણ ભાઈ? બાબા ભાઈ. સચ્ચે કહું છું, બાબાને ભાઈ બનાવો. પછી એવું ના વિચાર કરે કે હું ભાઈ છું તો બાબાને ભાઈ કેવી રીતે બનાવી શકું. હંમેશા એવું વિચાર કરવાનો કે હું આત્મા જ છું અને પિતા મારા ભાઈ છે. આપણે કહ્યું ને, ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ. તો એમાં બહેનો થોડી ગાય છે, ભાઈઓ પણ તો ગાય છે ને. તો ભાઈઓ પણ શું ગાય છે? તમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ. તો તમે બંધુ બોલો છો ને, તો ભાઈના મસ્તક પર શું લગાડશો? બધા ટીકો. પણ શિવ બાબાને તો કપાળ નથી, એવી રીતે લગાડશો? કોણ જવાબ આપશે? બોલો અરવિંદભાઈ સમિયાલા, શું કહેશો? શિવ બાબાને પરમધામમાંથી ક્યાં લાવશો? સૂક્ષ્મ વતનમાં. ક્યાં લાવશો? સૂક્ષ્મ વતનમાં. બ્રહ્મા બાબાના લલાટ પર એક લાલ જ્યોતિ આવે છે ઉપરથી, પરમધામથી. અને બાબાના, બ્રહ્મા બાબાના લલાટ ઉપર એ લાલ જ્યોતિ આવીને બેસે છે. એને આપણે કહીએ છીએ બાપ દાદા. એક પિતા, શિવ બાબા પિતા અને બ્રહ્મા બાબા મોટા ભાઈ. તો બાપ દાદાને તિલક લગાડવાનું. આ શરીરને ભૂલીને ઉપર જવાનું. આપણે પણ આપણું પ્રકાશનું શરીર જોવાનું. શું જોવાનું? પ્રકાશનું શરીર લઈને ઉપર જવાનું. સૂક્ષ્મ વતનમાં વચ્ચે. પરમધામમાંથી બાબાને, શિવ બાબાને નીચે બોલાવાના અને આપણે અહીંયાથી
ઉપર જવાનું. જે કોઈ એકબીજાને પ્રેમ કરતું હોય શું કહે, ભાઈ આપણે કમાટી બાગ મળીશું, એવું કહીએ બરાબર ને, કમાટી બાગ. તો કહીએ ને ભાઈ હાજ પડે ને કે છોકરા છોકરીઓ ત્યાં ભેગા થાય, એ એના ઘરેથી આવ્યું, એ એના ઘરેથી આવ્યું. તો આ જીવન જે છે, આ સૃષ્ટિ છે, એક રંગમંચ છે, ત્યાંથી આપણે સૂક્ષ્મ વતનમાં જવાનું, જ્યાં પ્રકાશનું શરીર લઈને આ 5 તત્વનું હડ્ડી માંસનું શરીર છોડી દેવાનું મન બુદ્ધિથી, અને શિવબાબાને પરમધામમાં લેવા જવાના. ચલો બાબા નીચે આવો, એમને પણ સૂક્ષ્મ વતનમાં લઈ આવવાના. સૂક્ષ્મ વતનમાં કોણ હોય? આપણા બ્રહ્મા બાબા પ્રકાશના શરીરમાં. એને આપણે પ્રકાશનું શરીર ધારણ કરવાનું. બાબાને સરસ તિલક લગાડજો, રાખડી બાંધજો. બાબા પણ તમને તિલક લગાડે, તમે બાબા પણ તમને રક્ષાબંધન કરે. અને પછી શું કરશો? બાબા તમને વરદાન આપી રહ્યા છે, બાબા મુખ મીઠું કરાવી રહ્યા છે. તમે પણ બાબાને મુખ મીઠું કરાવજો. કરાવશો ને કે નહીં? હા. અને એવી શક્તિ ભરજો કે બાબા હું તારો ને તું મારો. હું શિવ શક્તિ કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપ આત્મા છું. આત્મા એમાં ભાઈ બહેન નહીં જોવાના આપણે કે અમારું શરીર ભાઈનું શરીર છે કે બહેનનું શરીર છે. હું કોણ છું? આત્મા. ભગવાન તો આત્માને જોવે છે, શરીરને જોતો નથી. તો હું શિવ શક્તિ કોણ છું? શિવની સાથે શક્તિ, શક્તિમાંના આત્મા, શિવ શક્તિ કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપધારી છું. બાબા ચલો અમારી દુનિયામાં તમને લઈ જઈએ. અને સ્થૂળમાં પણ બાબા અમને રાખડી બાંધો. ઉપર તો બાંધી આવો, પણ નીચે પણ બાબાને આહ્વાન કરીને લઈ આવજો. અને બાબાને કહેજો બાબા આજે ભોગ સ્વીકાર કરો, અમને પણ કરાવડાવો. સાથે આપણા માતેશ્વરી જગદંબા, મીઠી મમ્મા, જે ઉપર બતાવશે સાઈડમાં, મમ્મા હાથ ઉપર કરો. પ્રવીણાબેન મમ્મા ક્યાં છે? હા, મમ્માનું આહ્વાન કરજો. આપણા બધા દાદીઓનું આહ્વાન કરજો. અને આજે બડી દીદીની પુણ્યતિથિ છે. તો બડી દીદી બહુ મોટા પરિવારના હતા. જે આપણે બોમ્બેમાં જસલોક હોસ્પિટલ છે ને, એમના ભાઈઓનું હતું. બહુ જ મોટા પરિવારની, કે જેમના ઘરમાં સોનાના બર્તનોમાં જમતા હતા, નોકરો ચાંદીમાં જમતા હતા. એટલા ધનાઢ્ય કુટુંબના દાદી હતા મનમોહિની દીદી. તો એ દીદીનું પણ આહ્વાન કરજો. કેટલા મહાન દિવસે આજે આપણે બધા ભેગા થયા છે. અને માઉન્ટ આબુ આપણું હેડક્વાર્ટર છે. તો બ્રહ્મા બાબાએ અને શિવ બાબાએ મનમોહિની દીદીને કરાંચી સિંધ હૈદરાબાદથી મોકલા હતા કે ભારત મેં એસી જગા ઢૂંઢો. અને મનમોહિની દીદી એ માઉન્ટ આબુનું પ્લેસ જગ્યા ફાઇનલ કરી હતી. તો એવા મહાન જેને ભગવાને જેને ઉપયોગ કર્યો, જેનો ભારતમાં આવવા માટે, એવી આત્માની આજે પુણ્યતિથિ છે. કે એની સંપૂર્ણતા એણે પ્રાપ્ત કરી. તો આપણે ભાગ્યવાન છીએ કે નહીં? છીએ ને. તો એવી રીતે અને રક્ષાબંધનનો શું થાય? રક્ષા અને બંધન. રક્ષા, પરમાત્મા શું કરે છે? આપણી રક્ષા. તો શરીરની રક્ષા કે આત્માની રક્ષા? આત્માની રક્ષા. આત્મા સુરક્ષિત નથી અત્યારે, 5 વિકારોથી બંધાઈ ગઈ છે. તો પરમાત્મા આવીને આપણે 5 વિકારોમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. તો મન આપણું બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે, એટલે આપણી શક્તિઓ વધી જાય. પછી પ્રકૃતિના પણ માલિક બની જઈએ, હે ને. તો રક્ષા અને બંધન, બંધનમાં બંધાવવું કોઈને ગમતું નથી, પણ પરમાત્મા આવીને આપણને શું કરે છે? એના સંબંધોના બંધનમાં બાંધે છે. શું કરે છે? ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ. બંધનમાં બાંધે છે. સંબંધોના બંધનમાં બંધાવવું દરેકને ગમે છે. અને જ્યારે આપણે એની સાથે સર્વ સંબંધ જોડીએ
તો બાબા આપણી 5 વિકારોથી શું કરે? રક્ષા કરે, હે ને? તો જ આપણી અંદર એના દિવ્ય ગુણ આવે, મીઠાશ આવે, પ્યાર આવે, સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ. એ છે મુખ મીઠું કરવું, હે ને? આપણે સ્થૂળમાં મુખ મીઠું કરાવી દઈએ છીએ, પણ મુખ મીઠું થવું એટલે આપણા મુખની અંદર ગુણ હોય, આત્માની અંદર ગુણ હોય તો જ અહીંયા ગુણ નીકળે ને, કે નહીં? તો એવું જીવન જીવવું ગમે કે ન ગમે? ગમે ને? હા. તો એટલા માટે આજે એવું આપણે રક્ષાબંધન, અને આપણું જીવન વરદાની જીવન થઈ જાય. આપણે શું આપવાના? આજ બધાને એક એક વરદાન મળવાના, વરદાનનો કાર્ડ. તો ત્યાં વતનમાં પણ જોવાનું કે બાબા મારી ઉપર ગોલ્ડન ફૂલોના વરદાન વરસાવી રહ્યા છે, એક નહીં અનેક. હા, મન બુદ્ધિથી જવાનું. પણ જો આ હેલિકોપ્ટર કે ફ્લાઇટની અંદર, વિમાનમાં કચરો હોય ને, નેગેટિવિટીનો, નકારાત્મકતાનો, તો વિમાન પડી જાય. પડી જાય ને, કે નહીં? પડી જાય, હે ને? તો એ કચરો નહીં રાખવાનો. મળવા જોઈએ ને એટલે શુદ્ધ પેટ્રોલ હોવું જોઈએ. શુદ્ધ સંકલ્પો હોય ને તો ફટાફટ ઉપર. નહીતર બીજા વિચારો આપણને પાછા નીચે લઈ આવે. એટલે આજે હમણાં આપણે ભોગ લગાડીએ ને, તો એ વિચારવાનું કે નહીં, મારે શુદ્ધ વિચારો સાથે ઉપર સૂક્ષ્મ વતનમાં, પરમધામમાંથી બાબાને લઈ આવું, અને સૂક્ષ્મ વતનમાં બાબા સાથે રક્ષાબંધન કરું, રાસ રસાવું, ભોજન કરું, બાબાને બ્રહ્મા ભોજન ખવડાવું. કહેવાય ને કે બ્રહ્મા ભોજન માટે દેવતાઓ પણ તરસતા હતા. એટલે આજે જેને પણ અપવાસ કર્યો હોય ને, હે ને, તો સાંજે નહીં ખાતા, એક ટાઈમ બાબાના ઘરે ટેબલ ખુરશી ઉપર બેસીને જમી લેજો. જે જોઈતું હશે ને તમને આપશે. એવું નહીં કે તમારે લેવા માટે ઊભું થવું પડશે. કોને કોને ઉપવાસ છે આજે? પણ આજ બાબાના ઘરે જમવાનું ને, હાથ ઉપર કરો, જમશું. હા, બસ. ટેબલ ખુરશી ઉપર બેસીને જમવાનું. શિવાની બેન, આ બધાને बराबर? रमीला बेन पाछड़, रंजना बेन, सबको जितने को भी अपवास है उसको खड़े नहीं होने देने का, उसके पास जाके पिरोसने का. ठीक है ना? हाँ. कोना घरे आव्या? माताओ कोना घरे आव्या? बाबाना घरे. बाबाનું ઘર એટલે કોનું ઘર? આપણું પિયર. હે ને? પિયરમાં જાય તો માં પીરસે ને. હા, તો આ પિયર છે. શું છે આપણું પિયર? ને ભાઈઓનું શું છે? હવે ભાઈઓ પાસ થાય છે કે નહીં જોઈએ. હા, બોલો, આપણું શું છે? ભાઈઓનું શું કહેવાય? ભાઈ મફતભાઈ, શું કહેવાય? બોલો, કોણ જવાબ આપશે? બાબાનું ઘર. તો બાબાનું ઘર એટલે બાપનું ઘર. બાબાનું ઘર એટલે બાપનું ઘર, દીકરાનું ઘર, હા, મામાનું ઘર. વાહ, તાલી બજાવો ભાઈ, પાસ થઈ ગયા. બરાબર વિચાર્યો કે આ પિયર તો આપણે શું કહીએ? મામાનું ઘર. વાહ. અમારા સૂરજભાઈ અને હા, સૂરજભાઈ જ્યારે આવ્યા, સૂરજભાઈ તો સમાધાન બધાને ખબર છે. હા, તો ગીતાબેન ને સૂરજભાઈ કે મામા કે ઘર આયે હે. અહીંયા અટલાદરામાં એમને બહુ જ ગમ્યું હતું. ગયા વર્ષે 10 દિવસ રહ્યા હતા ત્યારે કે મામા કે ઘર આયે. એમ કહા હે. तो हजी पण जाऊँ तो मन एम कि मामा के घर आएंगे. हाँ, मामा का घर बहुत याद आता है. सरस. चलो, બહુ બહુ ફાઇન. ભોગ લગાવીને આપણે એક રક્ષાબંધનનો ડાન્સ જોઈશું અને પછી રક્ષાબંધન કરીશું. અને આજે ભાઈ અમારા બધાની એવી ફરમાઈશ છે કે જે ગીતા પાઠશાળાઓ છે અને જે ઉપસેવા કેન્દ્ર છે, તો આપણે બધાનો ગ્રુપ વાઇઝ ફોટો પાડીશું ને? પાડવો છે ને? દીદી સાથે તમારો ફોટો નથી ને? કોનો ફોટો છે? દીદી સાથે કોઈનો ફોટો છે? વાહ. પાછળ 2 કન્યાઓએ કીધું કે અમારો છે. કન્યાઓ કેટલી આવી છે ટોટલ? હાથ ઉપર કરે કન્યાઓ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. વાહ. હા, સરસ. કન્યાઓનો એક અલગથી પાડીશું. બાકી પાઠશાળા અને ઉપસેવા કેન્દ્રનો એક ફોટો લઈશું. સરસ. આપણે બાબાને ભોગ સ્વીકાર કરાવીશું હવે, હે ને? અને જેને
ભાગ્ય વિધાતા જોયું નથી, એ લોકોની ઈચ્છા છે કે રક્ષાબંધન કરીને ભાગ્ય વિધાતા જોવું છે? હાથ ઉપર કરો તો કોને કોને જોવાની ઈચ્છા છે, તો એ પ્રમાણે આયોજન કરીએ. ઠીક છે, ચલો ભલે. ઓમ શાંતિ. બાબાને ભોગ સ્વીકાર કરાવીએ. આવો પ્રવીણાબેન, આવો. શિવાનીબેન 1 મિનિટ ઉપર આવશે. ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों।
मैं देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार।
पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। भाई बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, प्रेम रूहानी इसमें सदा है समाया। भाई बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, प्रेम रूहानी इसमें सदा है समाया। कल्प के बाद देखो, कल्प के बाद देखो हमें है मिलाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना। बहनों से ही शोभा है हर एक त्योहार की, इनसे जुड़ी है खुशियाँ हर परिवार की। पूजन अधूरे हैं इनके बिना तो सारे, प्रभु प्रतिमूर्त है ये इस संसार की। हाँ, बहनों से ही टीका है, बहनों से राखी है, हर घर को मंदिर जैसा बहनें बनाती है। बहनों से ही टीका है, बहनों से राखी है, हर घर को मंदिर जैसा बहनें बनाती है। मात पिता के जैसा, मात पिता के जैसा फर्ज है निभाया, देवी है अपनी बहनें प्रभु ने सिखाया। पावन ये नाता अपना। ओम शांति। एक छोटा सा नन्ही कुमारिया डांस करेगी, उसके बाद हम राखी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तब तक ब्रह्मा भोजन में भोग भी मिक्स हो जाएगा, तो पहले थोड़े थोड़े ब्रह्मा भोजन करने बुलाओ भी छोड़ेंगे, थोड़े को राखी, ऐसे करके हम शुरुआत करेंगे। અને આપણે પ્રવીણાબેન छोटी छोटी दो कन्याएं, छोटी छोटी कुमारी, ताली बजा दो, उसका उमंग गुस्सा बढ़ेगा।
सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा ऐसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। सभी कन्याएं ऊपर आ जाओ, सभी कन्याएं ऊपर आ जाओ। वो एक कन्या गई, कन्याएं ऊपर आओ, आओ। छोटी छोटी बच्चियां भी ऊपर आ जाओ। आओ छोटे छोटे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चालू रखो भाई, हाँ इतना ही है, फिर से चालू करो, करो करो। आओ सभी कन्याएं, छोटे बच्चे सभी ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तू भी आ जा बेटा, ऊपर आ जा, आ जा। तू भी आ जा बेटा, आ जा, आ जा। आजा छोटे छोटे बच्चे आजा, आओ जाओ जाओ, अरे चलो आगे, चलो आगे आगे। जाओ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। चलो एक बार और रख दो, अभी सब आ गए। तो आपको देख के सब खुश हो रहे हैं, देखो। राखी त्योहार खुशियाँ लायो रे, राखी त्योहार खुशियाँ लायो रे, रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। राखी त्योहार खुशियाँ लायो रे, राखी त्योहार खुशियाँ लायो रे, रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। इसके साथ एक ग्रुप फोटो ले लें। आओ प्रवीणा बेन आओ। प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे।
सभी सभी कन्याएं बड़ी होकर के ब्रह्मा कुमारी बने, भगवान की बने, ऐसा संकल्प करो। देखो सभी तालियां बजा रहे हैं। खुशियों में नाचे रे मनवा झूमे गाए रे, प्यार की बोली सुख इसमें हमारी हेतल रे, प्रभु संग पावन राखी मनायो रे, ये धागा रेशम नहीं कैसे? कंगन मर्यादा का, ये भाषण बंधन करना नहीं सीखे। बंधन नहीं नाता है आज नहीं प्रेम का, रक्षा बोल करे प्रभु शुभ क्या भावना। संकल्प लिया हो तो बोल। કાલે મોટા દીદીને મેં કીધું કે મેં બ્રહ્મકુમારી બનना हूँ। और हमारी भाविका, तूने क्या बोला? मैं चाहती हूँ समर्पित बनना है। पापा ने क्या बोला तेरे? पापा ने बोला मैं पापा ने कीधु, पापाए એવું કીધું કે મેં લેખક करना है। ગુજરાતીમાં બોલ. પપ્પાએ શું કીધું? કે મને બ્રહ્મા કુમારી બનવું છે તેવું કીધું, તો તારા પપ્પાએ શું કીધું? લખવા હા, તો રામપુરાની બે કન્યાઓ બ્રહ્માકુમારી બનવા માંગે છે. આજથી 18 વર્ષ થયા. કેટલા થયા? 18 વર્ષ થયા. 18 વર્ષ પહેલાં રામપુરા, છાપરિયાપુરા, લક્ષ્મીપુરા, ગોકુળપુરા, તલસઠ, બીલ, ચાપડ આ બધી જ પાઠશાળાઓ દીદીએ ખોલી હતી. ક્યારેય બપોરે સૂતી નહોતી અને રાત્રે પણ સૂતી નહોતી, મોડા સુધી રહેતી હતી અને ગામડે ગામડે જઈને ક્લાસ કરાવવા જતી હતી. હે ને? ત્યારે આ બધાનો જન્મ થયો હતો. હજી તો જન્મ્યા હતા, હવે આ જન્મીને મોટા થઈ ગયા, સમજ્યા? અને મોટા થયા પછી કાલે GGRC ગયા હતા નેહા દીદી પાસે, તો આ તો આવી હતી હેતલ, અને કંઈક ઘરે કાર્યક્રમ હતો એટલે નથી આવી શકી, પણ આજે આવીને મને પહેલાં જ કીધું કે દીદી મારા પપ્પાને કીધું મને બ્રહ્માકુમારી બનવું છે. તાકે કે લખાણ કરી આપીશ, ચિંતા ના કરીશ, દીદીને કહી દે છે. અને આને કાલે મોટા દીદીને રાખડી બાંધતી વખતે કીધું કે મને બાબાના ઘરે રહેવું છે, બ્રહ્માકુમારી બનવું છે. હે ને? તો બે કન્યાઓએ આજે મહાન દિવસે, બડી દીદીના દિવસે આવો સરસ સંકલ્પ કર્યો. તો ફરીથી એ બંને કન્યાઓ માટે ખૂબ ખૂબ જાગર. અને અમારી જ્યાં રામપુરામાં પાઠશાળા ચાલે છે ત્યાં શાંતાબેનના ઘરે પહેલાં ચાલતી હતી. તો કિંજલ પણ આજે નથી આવી, એની તબિયત નથી સારી એટલે. હે ને? બાકી એનું પણ અંદરથી લક્ષ્ય છે કે મને બાબાનું બનવું છે. આમાંથી બીજી કોઈ એવી કન્યા છે કે મને બાબાનું બનવું છે? આ ક્યાંની છે? રામપુરા? હા, રામપુરાથી આવી છે તું. રામપુરા, તું છાપરિયાપુરા. તારું નામ શું? ધર્મિષ્ઠા. તારું? નેહા. તારું? હેમાક્ષી. હે ને? હેમાક્ષીનું પણ થોડું થોડું લક્ષ છે. હેમાક્ષી કેટલું લક્ષ છે? થોડું થોડું કે પૂરું? હે? હજી પગ નથી મૂક્યો કે? આ વખતે ત્યાં આબુ પણ એ જે કુમારીઓની ભઠ્ઠી હોય એમાં હેમાક્ષી આવી હતી. અને કિંજલ આવી હતી ને? કિંજલ આજે કેમ નહીં આવી? નહીં આવી લે. પછી તારું નામ શું? ક્યાંથી? ઝવેરીપુરા. તું? નિધિ. ક્યાંથી? બિલથી. હીર. ક્યાંથી? બિલ. દેવ્યાની. રામપુરા. ઝીલ. ક્યાંથી? ચાણસદ. વાહ, વાહ ભાઈ વાહ. ભાઈ
આ બધા પાઠશાળાઓની કુમારીઓ છે હે ને. આમ તો જેનું જે ભાગ્ય હોય એ જ થાય. ભગવાનના ઘરમાં સમર્પણ થવું, એના માટે શું જોઈએ? બહુ બધું પુણ્ય જોઈએ. એમને એમ થવાય નહીં. પણ આજે તમે બધા એવું નક્કી કરો કે આ છોકરીઓનું પુણ્ય ખૂબ વધી જાય અને વિશ્વના કલ્યાણમાં લાગે. અને વિશ્વના કલ્યાણમાં ન લાગે તો જ્યાં જાય ત્યાં ભગવાનના ઘરનું નામ રોશન કરે હે ને. બહુ બધી આત્માઓનું કલ્યાણ કરે. તો અમારો ભાઈ ગ્રુપ ફોટો લઈ લો બધાનો. થેન્ક યુ. તો કન્યાઓને સાથે સાથે બાંધવી છે ને. ઉતાવળ નથી ને બધાને? રક્ષાબંધન કરવાની ઉતાવળ નથી ને? નથી ને? છો ને અહીંયા? સરસ. તો પહેલાં આપણે કોનાથી રક્ષાબંધન સ્ટાર્ટ કરીએ? સૌથી પહેલાં કયું ગામ આવ્યું હતું? સૌથી પહેલાં છાપરિયાપુર આવ્યું હતું. સારું. અને સમિયાલા પહેલાં આવ્યું હતું? તો સમિયાલા તો થોડીક વાર રહી શકે ને? ઓછા છે, રહી શકે. પહેલાં બિલ આવ્યું હતું. જો બાંધતા વાર નહીં લાગે. થોડું થોડું જો તમે શાંત રહેશો તો બહુ સારું. આપણે જો તમારા માટે રાખડી બાબાની આ ભોગમાં મૂકી હતી રાખડી, આપણા સબઝોનમાંથી રાખડી મળી હતી. અને જો તમને વાંધો ના હોય તો નાના બચ્ચાઓને દીદી બાંધશે, શિવાનીબેનને લોકો. અને તમને વાંધો ન હોય તો હું કન્યાઓને ફટાફટ રાખડી બાંધું. પહેલાં બાંધું? હા, બાંધી દો. અને ધ લાઇટ મૂવી લોકોએ જોઈ નથી. સાંભળો ભાઈ, મુકેશભાઈને કહી તો ધ લાઇટ મૂવી રાખે છે. બહુ સરસ છે, પણ 1 કલાકની મૂવી છે. તો તમે આમ ઓતપ્રોત થઈ જશો. ને સાથે આ બચ્ચીઓને પણ સાથે એવા વાઇબ્રેશન આપો કે પરમાત્મા આ પવિત્ર કન્યાઓ પાસે કંઈક કાર્ય કરાવે. ઠીક છે ને? આપશો ને વાઇબ્રેશન? બરાબર? હેપી ને? હા, ઠીક છે. ચલો તો કન્યાઓને બાંધી દઉં ને. પહેલાં હાથ ઉપર કરો દિલથી. યસ, તાલી પાડો ભાઈ. આશીર્વાદ આપો બધાને. પવિત્ર કન્યાઓ છો. શ્રાવણ માસમાં પવિત્ર કન્યાઓ બહુ પૂજનીય કહેવાય, પવિત્ર કહેવાય, હે ને? ભલે. અને પહેલાં કન્યાઓ બાંધ્યા પછી રામપુરાને લઈ લઈએ. વાંધો નહીં. અને જેને અપવાસ છે બહુ પ્રેમથી બ્રહ્મા ભોજન સ્વીકાર કરજો બેસીને. કાંઈ વાર નહીં લાગે. હમણાં ફટાફટ અડધી પોણી કલાકમાં બધું પૂરું. આ લોકો ઓલ્ડ એજવાળાને લેવા જોઈએ, હે ને? ધ લાઇટ ચાલુ કરો ને. ધ લાઇટ મૂવી બધા જોશે. હા, ટ્રેલર નહીં, મૂવી. હા, પૂરું મૂવી. આપણે શિવાનીબેન, હા, આ કન્યાઓના એક એકનો ફોટો સરસ લેજો. હા, એમ લોકોની યાદગાર બની જાય ને. બ્રહ્મા ભોજન રેડી છે નીચે? તો
કેવું છે કે જેને બ્રહ્મા ભોજન કરવું હોય? નહીં, પહેલાં રામ, હા, થોડા ચાપરિયાપુરાવાળા અને સમિયાલાવાળા નીચે જઈને બ્રહ્મા ભોજન કરવું, અથવા તો બિલવાળા પહેલાં બ્રહ્મા ભોજન કરી લે. પણ થોડીક 5 મિનિટ રહીને જાઓ, થોડુંક રક્ષાબંધન જોઈ લો. હા, જોઈને પછી બિલવાળા છે અને ભાઈલી ઓલ્ડ એજ હોમવાળા છે, હે ને. પેલા લોકોને પહેલાં જમાડી દો ને, પહેલાં ઓલ્ડ એજ હોમથી આવ્યા છે ને. બિલવાળા, મતલબ બિલ શું, ભાઈલીવાળા અને બિલવાળા પહેલાં બ્રહ્મા ભોજન કરી લે, હે ને. પણ 5 મિનિટ ધ લાઇટ જોઈને જાય. शिव बाबा, मैं आ गई। मीठे बच्चे, आप अपने घर में पहुंचे हो। बाबा, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। अच्छा बच्चे। बाबा का कमरा, वाह, ये ब्रह्मा बाबा का कमरा है। बाबा, आपने कहा था आप मुझे पूरी कहानी सुनाएंगे। आप कैसे सतयुग बनाने आए हैं? मीठे बच्चे, ये कहानी तो हर एक को सुननी चाहिए। तुम्हारी दुनिया में कलयुग अति को जा रहा है। इस धर्म ग्लानि के समय पर मैं परमधाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में अवतरित होता हूँ। बच्चों को संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की शिक्षा और शक्ति देने। लेकिन मुझ निराकार को कोटि में कोई में भी कोई ही पहचानेंगे। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले आपको कैसे पहचाना? बात 1876 की है बच्चे। सिंध के कृपलानी परिवार में लेखराज ने एक स्कूल अध्यापक के घर जन्म लिया। अपनी पारखी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा राजाओं के साथ हीरों का व्यापार करने वाले लेखराज कलकत्ता के प्रसिद्ध जौहरी बन गए। नित्य नियम से भक्ति और पाठ करने वाले लेखराज श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा, दानी स्वभाव और सात्विक जीवन वाले दादा लेखराज पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। जब दादा की आयु 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं सोच रही थी
कि अब हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर जाकर रहना चाहिए। जसोदा, तुम अभी से वानप्रस्थ की बातें करने लगी। अभी तो और बहुत कमाना है। अपने हीरे विश्व के राज परिवार पहनेंगे। टेलीग्राम। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। जसोदा, तुरंत कपड़े निकालो, गुरुजी ने बुलाया है, मुझे जाना है। पोते का नामकरण है, मेहमान पहुंचने वाले हैं, आप कैसे जा सकते हो? गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? ये कहकर कि पोते का नामकरण है। दादा लेखराज तो सबसे निराले थे और सबके प्यारे भी। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, परिश्रमी, उदारचित्त। चाहे भक्ति हो, सेवा भाव या व्यापार, हर एक में संपूर्ण समर्पण। इसलिए तो मैंने उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। समझा लखीराज बाबू? सेवा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दादा दादा दादा, आप ठीक हैं? आप धन्य हैं गुरुजी। मैं ध्यान में था और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ध्यान में आंख लग जाती है लखीराज, सफर की थकान है। विष्णु चतुर्भुज आपको स्वप्न में दिखे हैं। लेकिन गुरुजी। लखीराज, ये तुम्हारा वहम है, छोड़ो इन बातों को। नए आश्रम का निर्माण अगले मास शुरू करना है। जी गुरुजी, कलकत्ता जाकर पैसे भिजवा दूंगा। दादा को महसूस हुआ कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कुछ समय बाद वो सिंध से बनारस चले गए। अपने मित्र के घर रहकर आत्मचिंतन करने लगे, खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, मन का मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। हे मन मंत्री, तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? दादा को नित्य नए नए अनुभव होने लगे। खजाना बहुत है, पा रहा पा रहा। भैया, पत्र आया है, लिखा है चाबी मिल गई, पा लिया पा लिया। पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा? इसका क्या मतलब है? उठो, जागो, उठो, जागो। उठो, जागो। प्रभु, प्रभु, बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु, इतना भयानक विनाश। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए आत्मा सितारे परमधाम जा रहे हैं। हाहाकार
हाहाकार के दृश्य देख दादा को वैराग्य आ गया। अपने व्यापार को समेटने के लिए वो भागीदार से मिलने कलकत्ता चले गए। हीरे अब उन्हें पत्थर दिखाई देने लगे। दादाजी, मैं सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसी कोई बात नहीं सेवक राम। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलियुगी सृष्टि का महापरिवर्तन होना है। मुझसे अब ये व्यापार नहीं हो पाएगा। उस एक झलक के कारण आप अपना व्यापार बंद कर देंगे? प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। सभी भजन के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इकट्ठे वही बोल सुन रहे हैं, लेकिन हर एक के मन के भाव और भावना अलग अलग हैं। ये एक दूसरे के मन की बात नहीं जानते, लेकिन मैं आपको इनके मन की बात सुना सकता हूं, क्योंकि मैं अनुभव हूं। हे ईश्वर, हम पर कृपा करो। आपके आशीर्वाद से हमें बेटे का सुख मिले। प्रभु, वह पड़ोस वाली जमीन मिल जाए तो 2 टोकरी आम चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। मैंने आपके लिए 16 सोमवार के व्रत किए और आपने मुझे ऐसा पति और सास दी। पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला मेरे लिए। कोई फरियाद कर रहा है, कोई नाराज है और कोई तो ईश्वर से प्यार भरा सौदा कर रहा है। लेकिन इन सब में एक मन है जो अधिकार से उसे पुकार रहा है। मैं तो केवल तुमको ही मानूं। कान्हा, आप कब तक मुझसे दूर रहेंगे? क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती? मैं आपकी गोपी हूँ। मेरा तन, मन, धन सब कुछ आपका है। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। मुझे अपना बना लो प्रभु। भगवान तो हर बच्चे के दिल की बात सुनता है, लेकिन जो उसे प्यार से याद करते हैं उस पर खुद को न्योछावर कर देते हैं। उनके लिए तो भगवान भी बंधायमान है। सिंध हैदराबाद के अति प्रसिद्ध दादा आशाराम के परिवार में जन्मी गोपी बचपन से ही भक्ति, दान पुण्य और सेवा में मग्न रहती थी। कुशाग्र बुद्धि, व्यवहारिकता और दूरदर्शिता की धनी गोपी का विवाह छोटी उम्र में ही सिंध के अति धनाढ्य परिवार में हुआ। ये बताओ गोपी, तुझे कपड़े सिलने की क्या जरूरत है? तेरी तो हर इच्छा बिना मांगे पूरी करता है तेरा परिवार। कमल, मुझे खुद की कमाई से दान करना अच्छा लगता है। वैसे तो परिवार वाले दान पुण्य के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन खुद के कमाए हुए धन से की हुई सेवा का सुख कुछ और ही होता है। और शायद ऐसा करने से भगवान जल्दी मिल जाए। बात तो सही है, पर तुझे सच में लगता है तुझे भगवान मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? गोपिकाओं को कान्हा मिले
तो मुझे प्रभु क्यों नहीं मिलेंगे? मन में अगर संपूर्ण निश्चय हो तो भटकती नाव को मांझी मिल ही जाता है। ये जो तुम्हें दिखाई देता है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वो तुम हो। गोपी को बाबा के माथे पर लाइट का चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। वो ट्रांस में नहीं थी, खुली आंखों से उन्हें लाइट दिखाई दे रही थी और वो परमात्मा के प्यार में खो गई। बच्ची, आज जो सुना वो कैसा लगा? बाबा, समझ कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत शांति मिली। बच्ची, ऐसा करो, कल से तुम 1 हफ्ते तक रोज ज्ञान सुनो, समझ आने लगेगा। लेकिन बाबा, मैं गुरु नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु होता है। बच्ची, आपको गुरु करने को कौन कह रहा है? आपको तो ज्ञान सुनने आना है, खुद को पहचानना है, परमात्मा को पहचानना है। वैसे भी परमात्मा तो सखा भी होता है ना बच्ची? परमात्मा तो सखा भी होता है ना। बाबा के ये शब्द सुनकर गोपी तो खुशी में गदगद हो गई। अगले दिन से ही गोपी रोज जाने लगी। बाबा ने खुद उन्हें आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, स्थूल जगत और परमधाम निराकारी दुनिया की समझ दी। एक दिन बाबा ने कहा, गोपी बच्ची, निराकार परमात्मा हम सबको ज्ञान अमृत पिलाकर पतित से पावन बनाने आए हैं। काम विकार तो नर्क का द्वार है बच्ची। तुम तो समझदार बच्ची हो, तुम्हारा क्या कहना है? बाबा, मैं तो परमात्मा की सच्ची सच्ची गोपिका हूँ। मैं आज से ही पवित्रता का व्रत लेती हूँ। पवित्रता के व्रत के कारण गोपी के पति के साथ झगड़े होने लगे। 1-2 बार तो पति ने उसे मारा भी, लेकिन गोपी तो प्रभु के प्रेम में मग्न हर विघ्न और अत्याचार का सामना करती रही। एक दिन उनके पति ने उनकी तरफ ग्लास फेंका और गोपी के सर पर गहरी चोट लग गई। उस दिन गोपी की माँ रुक्मणी ने गोपी को वापस बुला लिया, लेकिन लोगों ने परिवार वालों को इतना भड़काया कि गोपी के दादा आशाराम जी ने गोपी का ओम मंडली में जाना बंद करवा दिया। लेकिन भगवान की गोपी को कौन रोक सकता था? गोपी घर छोड़ परिवार, धन संपत्ति सबको त्याग कर ओम मंडली में चली गई। बाबा ने गोपी, उनकी माँ, जिन्हें यज्ञ में क्वीन मदर बुलाते थे, और बहन के लिए ओम मंडली के सामने एक मकान किराए पर लेकर दिया। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आश्रय दिया। ना बच्ची ना, शिव बाबा का शुक्रिया है। ये बाबा तो बस उसके हुक्म पर चलता है। बाबा, क्या हम यहाँ पर 8-10 सिलाई की मशीन लगा सकते हैं? अच्छा बच्ची, वो क्यों? बाबा, ताकि जो बहनें घर वालों से तंग होकर आती हैं, स्वनिर्भर बनना चाहती हैं,
मैं उनको सिलाई सिखा सकूं। जिनको बंधन है वह यहाँ आकर सिलाई भी सीखेंगे और परमात्मा की मुरली भी सुनेंगे। वाह बच्ची, आप तो बहुत समझदार हो। देखते ही देखते कई बांधेली माताएं, बहनें और भाई भी गोपी के पास सिलाई सीखने लगे और उसे दीदी दीदी कहने लगे। आगे चलकर परमात्मा ने गोपी को दिव्य नाम दिया, मनमोहिनी। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति 8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर समर्पित कर दी, जिनमें एक दीदी मनमोहिनी थी। बच्चे, इस જેને ट्रस्ट की પણ जिम्मेदारी રાખડીઓ आप જોઈએ ને सब એ पर है। નીચેથી રાખડી લઈ ओम શકે राधे, છે। વેચાતી आप રાખડી इसकी प्रमुख તમારા होगी। ભાઈઓ માટે जी જેને बाबा। પણ જોઈતી और हाँ હોય એ बच्ची, નીચેથી आप दीदी કાઉન્ટર ઉપરથી લઈ मनमोहिनी से લેજો। राय सलाह करती रहना। हाँ जी बाबा। दीदी मनमोहिनी मम्मा की मुख्य सलाहकार तो थी ही, साथ ही पूरे यज्ञ के स्टोर का ख्याल रखने वाली मुख्य कंट्रोलर थी। बाबा और मम्मा को दीदी की परिपक्व स्थिति पर अटूट विश्वास था। ज्ञान योग की एक्यूरेट धारणा दीदी की विशेषता थी। एक बार दीदी ने देखा कि दादी चांद की कुछ परेशान लग रही थी। क्या बात है सखी, शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है? मुझे लगता है कहीं मेरा पुरुषार्थ बाकियों से पीछे ना रह जाए। यह पुरुषार्थ पुरुषार्थ कह के क्या शक्ल बन गई है? ऐसे थोड़ी करना होता है पुरुषार्थ। फिर कैसे करना होता है? मिठड़ी, खुशी वाला पुरुषार्थ करो, चिंता वाला नहीं। ऐसा पुरुषार्थ हो जिसे देख दूसरों को भी करने का मन करे। पुरुषार्थ का पहाड़ बना दिया तो कौन उसे चढ़ना चाहेगा? हंसी कुड़ी, खेल खेल में पुरुषार्थ करो। दीदी, लेकिन भगवान के साथ हंसी खेल कैसे करूंगी? वो तो भगवान है ना। मिठड़ी, भगवान तो है लेकिन सखा भी तो है। सर्व संबंध है ना। सखा रूप में उसे याद करके तो देखो कितना मीठा सुख मिलता है। दीदी की इस मधुर शिक्षा ने ही दादी जानकी को भगवान के साथ सखा रूप से संबंध जोड़ना सिखाया। दादी जानकी ने आगे चलकर कंपेनियन ऑफ गॉड नाम की किताब भी लिखी, जिसकी प्रेरणा भी उन्हें दीदी से मिली थी। दीदी निश्चय बुद्धि और निर्भयता की मिसाल थी। एक बार बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, शिव बाबा आज कहते हैं कुएं में कूद जाओ। कोई है कुएं में कूदने को तैयार? बच्ची, तुम तो पास हो गई, लेकिन बाप भी भला कभी बच्चों को डूबने को कहेगा क्या? बाबा, मैं तो परमात्मा की गोपी हूँ। वह जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसी तैयारी को देखकर बाबा ने दीदी पर यज्ञ इतिहास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंप दी। देश के विभाजन के बाद 1950 में ओम मंडली के 400 भाई बहनों को कराची से भारत स्थानांतरित करना था, लेकिन कहां ये किसी को नहीं मालूम था। बच्ची, आप भारत जाओ और यज्ञ के लिए उचित स्थान ढूंढो। 2 बातों का ध्यान रखना बच्ची। एक तो बाबा के इन फूल जैसे बच्चों पर दुनिया वालों की कुदृष्टि ना पड़े, ऐसा स्थान हो। और दूसरी बात, सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रह सकें, इसका ध्यान रखना। हाँ जी बाबा। ब्रह्मा बाबा को दीदी मनमोहिनी पर संपूर्ण विश्वास था, क्योंकि दीदी ने अनेकों बार अपनी काबिलियत
और शक्तिशाली स्थिति प्रत्यक्ष की थी। दीदी ने भारत में अपने रिश्तेदारों के सहयोग से अनेक मकान देखे, लेकिन एक भी मकान बाबा की कही दोनों बातों प्रमाण नहीं था। अहमदाबाद में जब वो अपने लौकिक भाई के साथ उनके गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज से मिली तो ब्रह्मा बाबा और आप सब बहनें तो तपस्वी हैं। आप माउंट आबू जाकर देखिए, वहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या की है। भूमि सात्विक है, कई राजाओं की कोठियां हैं वहां। वो स्थान उत्तम रहेगा आपके लिए। माउंट आबू में कई सारी कोठियां देखने के बाद भी दीदी को कोई जगह नहीं मिली जो संगठन के लिए सही थी। जब वो वापस जाने लगी तो ड्राइवर ने कहा, बहन जी इतने मकान देख लिए आपने, आखिर आपको चाहिए क्या? एक ऐसी जगह जहां हम 400 लोग साथ में रह सकें, जहां दुनिया का शोर न हो और हम तपस्या कर सकें। एक जगह है, वहां ले चलता हूं आपको, शायद आपका काम बन जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हम बच्चों के लिए इतनी अच्छी जगह ढूंढी है। शुक्रिया भैया, आपने भगवान के काम में सहयोग दिया है। 5 मई 1950 को ओम मंडली का संगठन आबू पहुंच गया। जरा सोचिए, 400 लोगों की जिम्मेदारी और केवल एक दीदी के निर्णय पर बाबा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया होगा? बाबा को दीदी की परखने और निर्णय शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। दीदी खुद जितनी धारणा मूर्त थी, यज्ञ के हर बच्चे को उतना ही धारणा युक्त बनाने का पुरुषार्थ करती थी। यज्ञ में जब सेवाएं शुरू हुईं, तो दीदी ने ही पहले दिल्ली, इलाहाबाद, ग्वालियर आदि स्थानों पर जाकर धारणाओं की क्लास करा के हर एक को मजबूत बनाया। एक बार दीदी ग्वालियर में कुछ लोगों से मिल रही थी। दीदी, एक माता आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा संकोच कर रही हैं। दीदी से मिलने में संकोच कैसा? मुट्ठी, उन्हें प्यार से ले आओ। बोलो सखी, क्या पूछना था? दीदी जी, मैंने यहाँ आकर नया जीवन पाया है। शिव बाबा के प्यार का असीम सुख अनुभव कर रही हूँ। सब कुछ ही बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या सखी? यहाँ आने से पहले मैंने गुरु किया था। मुझे उनके पास बहुत अच्छा लगता था। उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैंने उनका यह लॉकेट पहना है। क्या यहाँ आने से मुझे यह लॉकेट उतारना पड़ेगा? सखी, आप तो बड़ी भोली हो, इसलिए भोलानाथ भगवान आपको इतना प्यार करते हैं। आपकी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, आप लॉकेट पहने रखो, लेकिन ज्ञान से खुद को वंचित नहीं करना, क्योंकि परम गुरु परमात्मा निराकार शिव बाबा खुद ज्ञान सुना रहे हैं। कोई भी सोच चले तो उसमें अटकना नहीं, उलझना नहीं। सदा याद रखना, कोई भी विचार
अगर हमारी बुद्धि को परमात्मा की याद से दूर करता है तो वह माया है, उस पर विजय प्राप्त करो। समझा? दीदी, व्यर्थ और माया की पहचान मुकेश क्या छे मुकेश? हर एक को एक्यूरेट करवाती थी। बेटा फोटो पाड़ी आप और इसका एकमात्र कारण था दीदी की पढ़ाई में एक्यूरेसी। क्लास में सदा ही डायरी, पेन और चश्मा लेकर बाबा के आने से पहले पहुंच जाती थी। मुरली का दिन भर में मनन चिंतन करती और ज्ञान की पॉइंट्स में से कई सवाल जवाब निकालती थी। सारा दिन में जो भी मिलने आते, दीदी उनसे मुरली के प्रश्न पूछती और फिर कोई और बात करती। आज भी मुरली में प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए सार जो आता है वो दीदी ने ही शुरू करवाया था। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में ही रहकर बाबा का राइट हैंड बनकर यज्ञ का सारा कारोबार संभालने लगी। बच्ची, अभी जैसे बाबा की उंगली पकड़कर चल रही हो, ऐसे ही भविष्य में सतयुग के पहले राजकुमार की उंगली पकड़ उसे चलना सिखाओगी, ये निश्चय है? हाँ जी बाबा, यह मेरा भाग्य है। ड्रामा में इतना वंडरफुल पाठ मिला है, संपूर्ण निश्चय है और साथ साथ पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा ने दीदी और दादी की जोड़ी को यज्ञ संभालने के निमित्त बनाया। परमात्मा शिव बाबा ने ये बात सबको पक्की कराई कि विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा खुद करा रहे हैं। बच्चों को निमित्त बनाकर यज्ञ भी चलेगा और सेवाएं भी होंगी। शिव बाबा ने कहा, दादी प्रकाशमणि माइक है और दीदी मनमोहिनी माइट है। माइट शक्ति आती कहां से है? परमात्मा और उनके कर्तव्यों से। जिसका सच्चा प्रेम है वो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और अपने संग से दूसरों को भी बनाते हैं। एक बार दीदी ने दो बहनों को काफी देर तक एक ही जगह पर बैठे बातें करते देखा। उसमें से एक ने दीदी को देखा तो वहां से उठकर चली गई। मेरी मीठी सखी, क्या बातें कर रही थी तुम दोनों? दीदी, हम रूह रेहान कर रहे थे। अच्छा, कौन सी पॉइंट पर? जरा मुझे भी सुनाओ। दीदी, आपको तो सब आता है, हम तो बस यूं ही ज्ञान की बातचीत कर रहे थे। दीदी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुट्ठी, ज्ञान की बातचीत होती तो सुनाने में हिचक नहीं आती। हमेशा याद रखना, किसी को भी सखी तो बनाओ लेकिन सहेली मत बनाओ। मतलब? सहेली वह जो इधर उधर की बातें करे, गपशप करे, और सखी मतलब वह जो ज्ञान मुरली का मनन करे, उनके पॉइंट्स पर चिंतन और चर्चा करे। समझी सखी? संग के रंग से व्यर्थ संकल्प ना चलें, इसकी संभाल दीदी ने खुद भी की और दूसरों को भी अटेंशन दिलाया। एक बार दो कुमार दीदी से मिल रहे थे। दोनों की प्रभु प्रेम की लगन देखकर दीदी ने उनसे कहा, राजू भाई, आप बाबा के यज्ञ में समर्पित होना चाहेंगे? जी दीदी, बाबा को ही अब सब कुछ समर्पित है। अच्छा,
और आप रमेश भाई? दीदी, मैं तो निर्बंधन हूं, समर्पित होना चाहता हूं, लेकिन आप जैसा कहेंगे। अच्छा, समर्पित तो हो जाओगे, लेकिन यहाँ माया बहुत आएगी, उसका क्या करोगे? माया? दीदी, यज्ञ के अंदर कैसी माया? संगठन में संग से भी माया आ सकती है। 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर यज्ञ में कोई रह रहा है लेकिन दिल से सेवा नहीं कर रहा है, बोझ समझकर चलता है, बहानेबाजी करता है, ऐसे के संग में बैठोगे तो रंग लग जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई सेवा बहुत करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, अमृत वेले योग नहीं करता, मुरली क्लास नहीं करता है, तो ऐसे के संग से दूर रहो, क्योंकि वह सेवाधारी है लेकिन योगी नहीं। और तीसरी बात, ऐसा संग जो कभी किसी बड़ों की निंदा करता है, मुरली की करेक्शन करता हो, बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में या बड़ों के बारे में उल्टा सीधा सोचता हो, ऐसे पर निंदक का संग नहीं करना। दीदी जी, शुक्रिया। मैंने ये तीनों बातें जीवन भर के लिए गांठ बांध ली हैं। दीदी, आप हमारे बड़े हो, माया आई तो पहले उसे आपका सामना करना पड़ेगा, और आपको देखते हुए हम भी उस पर जीत पाना सीख लेंगे। मुबारक हो, इस बात पर बाबा की टोली खाओ। ज्ञान की गुह्यता को कोई सरल करके सिखा दे तो स्व परिवर्तन की यात्रा पर चलना सहज हो जाता है। दीदी ने ही मधुबन में भट्टियां, टीचर्स ट्रेनिंग और शिविर शुरू करवाए, जो आज तक बाबा के बच्चों को मधुबन तपस्या भूमि से जोड़ कर रखते हैं। देखो, बाबा कहते हैं कि बाबा का एक एक कुमार कमाल करने वाला है। आप सब कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं। सफेद ड्रेस और बैज पहन लिया, बन गए ब्रह्मा कुमार। आप सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं, अब तपस्वी कुमार बनो। तपस्या क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं पर भी तुम्हारी आंख न जाए। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन उसको बनाने वाला कौन? बोलो। तो सदा याद रखना कि मैं तपस्वी कुमार हूं। बाबा, मैं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को अपने दिल का हाल सुनाऊं, ऐसा अभ्यास करो। दीदी, आज जो आपने कुमारों की क्लास कराई थी, उसकी रिकॉर्डिंग एक भाई मांग रहा है, दे दूं उन्हें? रिकॉर्डिंग नहीं देना, क्लास के समय जो पॉइंट अच्छी लगी वह धारण करे। लेकिन दीदी, वो बहुत जिद कर रहा है, कहता है कि दीदी की क्लास बहुत अच्छी लगी, उसे बार बार सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। अरे मठा, क्लास में अभी यही तो बताया कि एक शिव बाबा से ही सुनो और एक उसी को सुनाओ। फिर हम कुछ ऐसा क्यों करें जिससे मनुष्य आत्मा में बुद्धि अटक जाए? उसे बाबा की मुरली टेप में भरकर दे दो। मेरे किसी भी कर्म से अगर बाबा नहीं बल्कि मैं दिखाई देती हूं, तो उस कर्म का बोझ मुझ पर चढ़ेगा। इतना ख्याल रखती थी दीदी, और सबका बुद्धि योग बाबा से जोड़ देती थी। दीदी न खुद मनमत पर चलती, न दूसरों को चलने देती थी। देखो, इस यज्ञ में धन कैसे आता है। कोई माता घर खर्च में से एक एक पाई जमा करती है। कोई बांधेली माता खुद पर खर्चा न कर अपनी पूंजी भेजती है। कोई छोटा सा कुमार अपनी पॉकेट मनी में से बचाकर भेजता है। यज्ञ में आने वाले
एक एक पैसे में त्याग है, तपस्या है, बाबा के लिए प्यार है। हमें एक एक पाई का सम्मान करना चाहिए। आप सब अलग अलग अपने लौकिक घरों में पत्र भेजते हैं या खर्चा होता है। अगर एक जगह के आसपास वाले अपनी चिट्ठियां एक ही लिफाफे में एक ही सेंटर के नाम पर भेजें, एक ही स्टैंप में काम हो जाएगा। आपके घर वाले आपकी चिट्ठी लेने शिव बाबा के सेंटर जाएंगे, मुरली सुनेंगे, टोली खाएंगे। इसमें उनकी भी उन्नति होगी। ठीक है ना? पसंद है? एक परमात्मा पर समर्पित एक नामी और इकोनॉमी से यज्ञ को संभालने वाली दीदी दादी जैसे कि दो हंसों की जोड़ी जो एक दूसरे की राय के बगैर कोई कदम नहीं उठाती थी। दोनों ने संगठन को इतना मजबूत किया कि धीरे धीरे देश विदेश के अनेक बच्चे मधुबन आने लगे। ओम शांति दीदी। दीदी, ये सिस्टर मोरीन है। दीदी सिस्टर मोरीन को शक्तिशाली दृष्टि देती रही। सिस्टर मोरीन को अशरीरीपन का अनुभव होने लगा। उन्हें लगा जैसे अनेक जन्मों के बोझ पल भर में उतर गए। दीदी ने कहा, मोरीन नहीं, मोरनी। तुम बाबा की मोरनी हो। यू आर नॉट मोरीन, यू आर मोरनी। मीन्स peahen, God's peahen. Morni, I'm Baba's Morni. आई इंग्लिश बुद्धू, तुम हिंदी बुद्धू, लेकिन आत्मा आत्मा सखी, फ्रेंड। ओके? प्रभु प्रेम में डूबी हुई दीदी कितनी सहजता से हर एक को प्रभु प्रेम में रंग देती थी। हर रोज मुरली के बाद दीदी भी बाबा की तरह सभी पत्रों के जवाब देती। सारे जवाब लिखकर ही दीदी नाश्ता करती थी। पत्र में इंग्लैंड के पहले हिस्से में मुरली के पॉइंट्स लिखती, फिर सेवा की बात लिखती थी। दीदी को जो भी किसी के बारे में कुछ याद आता था वो उसको नोट करती थी। पत्र लिखते हुए वो नोट्स को सामने रख उनकी विशेषताएं लिख उनमें बल भरती और प्यार भरी शिक्षा और राय भी देती थी। दादी और दीदी अक्सर टीचर बहनों से मिलकर उनसे सेवा समाचार सुनती थी। दीदी वो सेवा समाचार सब सेंटर्स पर भेजकर निर्देश देती कि सभी भाई बहनों को सुनाओ और आगे भेजो ताकि सबको सेवा करने की प्रेरणा मिले। एक बार टीचर्स से मिलते हुए दादी ने कहा, पुष्पा बहन, आप भी सेवा समाचार सुनाओ। दादी जी, मैंने कोई विशेष सेवा नहीं की है, अभी मैं सीख रही हूँ। मुट्ठी, तुम बहुत अच्छी सेवा करती हो। दीदी, मैंने? हाँ सखी, तुम, क्योंकि तुमसे बड़े निश्चिंत रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। सुनो सखियों, सेवा तो शिव बाबा ही कराते हैं। सेवा तो हुई ही पड़ी है, लेकिन सेवाओं के दौरान एक दो के संग में आते हुए खुद के संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने की सेवा, यह सेवा हमें खुद करनी है। अगर आप अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी लो तो यह है सच्ची सेवा। दीदी ने हमेशा सेवा से पहले अटेंशन स्थिति पर खिंचवाया।
क्योंकि स्थिति से ही तो सेवा होती है। दीदी सखी बन खेल खेल में ऊंची शिक्षाएं समझा देती और मां बनकर शक्तिशाली पालना करती। दीदी को बचपन से ही चलने में तकलीफ थी। तकलीफ के बावजूद वो सीढ़ी चढ़कर दादी चंद्रमणि से मिलने पहुंच गई, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दीदी को देखकर उनकी आधी बीमारी ठीक हो गई। चंद्रमणि बहन, कैसी हो आप? दीदी, कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार है और दर्द भी बहुत है। मीठी बहन, कभी यह मत कहना कि मुझे बुखार है। कहो, मेरे शरीर को बुखार और दर्द है। हम सब तो अति इंद्रिय सुख में हैं। ममतामयी दीदी ने उनके माथे पर हाथ फेरा तो जैसे सारा दर्द खींच लिया। एक एक की पर्सनल देखभाल, उनकी संभाल, कभी पिकनिक करना तो कभी रास, कभी क्रिकेट खेलना तो कभी बैडमिंटन। दीदी हर एक को ज्ञान, योग और पालना से बहलाती रहती। रोज शाम को स्व पुरुषार्थ की कचहरी भी लगाती। कभी कभी भंडारे का काम ज्यादा हो तो कचहरी के दौरान ही हर एक से सब्जी कटवा लेती। दीदी तीव्र पुरुषार्थी थी। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य सदा याद रहता था। अगर कोई व्यर्थ बात करता तो कहती, भाई छोड़ो न इन सब बातों को। अपनी शक्ति और समय व्यर्थ में ना गवाओ। शिव बाबा को याद करो। अब घर जाना है। अब घर जाना है, ये दीदी का महामंत्र बन गया। चाहे किसी से पर्सनल मिल रही हो या क्लास करा रही हो, दीदी बार बार याद दिलाती, अब घर जाना है। एक बार चिटचैट के दौरान किसी ने पूछ लिया, दीदी इतनी जल्दी थोड़ी ही घर जाना है? अभी तो कितनी सेवा बाकी है। देखो बहन, सेवा शिव बाबा कराते हैं, वह तो समय अनुसार होनी ही है। उसमें हम आत्माओं का कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ तो नष्टो मोहा बनने का है। हमें चेक करना चाहिए कहीं हम में कोई मोह तो नहीं। कई बार सेवा का, स्थान आदि का मोह हो जाता है। लोगों से मोह तो आसानी से खत्म हो जाता है, लेकिन सेवा का मोह भी रॉयल मोह है। लोहे की जंजीरें टूट जाती है, लेकिन पता ही नहीं पड़ता कब सुनहरे धागों से बंध जाते हैं। दीदी, इस सूक्ष्म मोह से कैसे मुक्त हो? बाबा ने नष्टो मोहा बनने की समझानी हमें दी है, लेकिन हमें धारणा में लानी है। अगर मैं आत्मा यह याद रखूं कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, घर तो मेरा परम धाम है। अब मुझे कर्मों के हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाना है। कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। घर जाना है याद रहेगा तो इस दुनिया की कोई भी आकर्षण नहीं खींचेगी। घर याद रहेगा तो घर में रहने वाला मीठा शिव बाबा भी याद रहेगा। हम इस दुनिया में सिर्फ सेवा अर्थ हैं, स्व अर्थ नहीं। तो फिर इस दुनिया से कोई इच्छा नहीं, स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए। नष्टो मोहा सहज बन जाएंगे। इसलिए बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो हमेशा याद रखना है, अब घर जाना है। एक दिन सुबह अमृत वेले दीदी को हल्का सा चक्कर आया।
और चोट लगने पर खून निकल आया। डॉक्टर ने बताया कि दीदी को ब्रेन में क्लॉट है। डॉक्टर भगवती ने बहुत प्यार से दीदी का इलाज किया, जैसे कि अपनी मां का इलाज कर रहे हों। दीदी जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर भाई, आप तो मेरे शरीर का इलाज कर रहे हैं, मैं आत्मा तो सदा शिव बाबा की याद के झूले में मौज में हूँ। दीदी सभी डॉक्टर्स और नर्सेस को शिव बाबा का परिचय दे परमात्मा को याद करना सिखाती। दीदी का कमरा हॉस्पिटल नहीं, आश्रम बन गया था, जिसमें योग के वाइब्रेशंस और सारा दिन सेवा की बातें थी। चलिए दीदी जी, आपका ऑपरेशन थिएटर में चलने का समय हो गया। बहन, पहले आप बताओ, आपको शिव बाबा याद है? याद है ना? अब घर जाना है। इस विश्व नाटक रंगमंच पर हर आत्मा का विशेष पार्ट है, और ये तो परमात्मा की गोपी थी। सर्जरी के कुछ दिन बाद 28 जुलाई 1983 को दीदी मनमोहिनी ने अपने पुराने देह को त्याग दिया और आत्मा पंछी अपनी अगली सेवा पर उड़ चली। मैं तो सबके मन को जानता हूं, संकल्प चल रहे थे। दीदी ऐसे कैसे चली गई? बाबा ने दीदी के निमित्त विशेष संदेश दिया। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी पीढ़ी और दीदी को सेवा पीढ़ी। इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। न भगवती का दोष है न भगवान का। ये तो ड्रामा का राज है, इसलिए कोई संकल्प नहीं कर। दीदी ने अपने जाने में भी सभी को शिक्षा दे दी कि ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ये पक्का करा दिया। मैंने दीदी के हर क्षण को महसूस किया है। मैं अनुभव हूं, इसलिए आप सबसे आज यही कहूंगा, दीदी की तरह परमात्मा के साथी बनकर और सब बातों से साक्षी होकर अपनी स्थिति को परिपक्व बनाओ, क्योंकि सच्चाई तो यही है, अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंत
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज। राखी बांधो करो जग का कल्याण, पवित्रता की राखी बांधो करो जग। ओ आई बहना, ओ आई बहना। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए, इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई, एक पिता के नाते से हम सब हैं भाई भाई। भूल गए इस नाते को, अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।
कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। प्यार के बंधन में बंधे बाबा बच्चों के साथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। सदा सफलता मिलेगी भैया, सदा सफलता मिलेगी भैया तुमको हर पुरुषार्थ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। राखी की रेशम
स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, है ये बड़े अनमोल जिनका बोल नहीं। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। राखी ये संदेश सुनाता परम पिता से सच्चा नाता, जो सारे संबंध जोड़ता जीवन का सच्चा सुख पाता।